Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 1 of Environment Studies. Topics to be covered in this session are the meaning of the term environment, the field and interdisciplinary nature of environmental science, the importance of natural resources and ecosystem services, the scientific method and the process of science, some pressures on the global environment, and concepts of sustainability and sustainable development. So first of all, I would like to introduce you to this particular session, that's environmental studies. Environmental studies deals with every issue that affects an organism. It is essentially a multidisciplinary approach that brings about an appreciation of our natural world and ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन इट्स इंटेग्रिटी. ये एक ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जो एक अप्रिसिएशन लेके आता है हमारे नेचुरल वर्ल्ड के लिए और ह्यूमन इम्पैक्ट्स की बात करेगा उस पर. इट इज एन अप्लाइड साइंस एज इट सीक्स प्रैक्टिकल आंसर टू मेकिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन सस्टेनेबल ऑन द अर्थ्स finite resources. Its components include biology, geology, chemistry, physics, engineering, sociology, health, anthropology, economics, statistics, computers and philosophy. So environmental studies is all about that. We deal with every issue that affect an organism. जिस भी चीज़ से ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट होता है उसमें हम ये सब कंपोनेंट्स ऐड करते हैं. बायोलॉजी, जियोलॉजी, जो भी मैंने अभी आपको बताया, physics, sociology and health, economics, statistics and all these things, all these components are because from these components always affect an organism. So हम कह सकते हैं कि these are all related to environmental studies. As we look around at the area in which we live, we see that our surroundings were originally a natural landscape such as a forest, a river, a mountain, a desert, और या फिर इन सब का combination. हम सब landscape में रहते हैं. Most of us live in landscape that have been heavily modified by human beings in villages, towns और cities. ये सब आप जानते हैं कि landscape था और अब जो है हम सब उधर ही रहते हैं, लेकिन they are heavily modified by human beings in villages, towns और cities. यानी कि हमने अर्थ को अपने accordingly, human beings ने अपने accordingly उसको heavily modify कर दिया and they have turned them into villages, towns or cities. But even those of us who live in cities get our food supply from surroundings, villages, and these in turn are dependent on natural landscapes such as forests, grasslands, rivers, seashores for resources such as water for agriculture, fuel, wood, fodder and fish. So हम कह सकते हैं thus our daily lives are linked with our surroundings and inevitably affects them. हमारी डेली लाइफ रोज बेसिस पे अगर हम देखें तो कितनी जुड़ी है हमारे एनवायरनमेंट से, हमारी सराउंडिंग से, और इनएविटेबली अफेक्ट करती है हमारी लाइफ उसे. We use water to drink and for other day-to-day activities. वहीं अगर एयर को देखें तो we use resources from which food is made and we depend on the community of living plants and animals which form a web of life. तो इस तरीके से एक web of life बनता है जिसमें ये पूरा environment, जिसमें सभी living, non-living things आते हैं और एक ये पूरा web of life बनाते हैं और which we are also a part. तो everything around us forms our environment. जो भी हमारे आसपास है वो सब हमारा environment है and our lives depend on keeping its vital systems as intact as possible. और हमारी लाइफ भी इससे ही डिपेंड करती है कि हम इस सिस्टम को कितने प्रॉपरली मैनेज करते हैं और कैसे इसे इंटैक्ट रखते हैं जितना हो सकता है. और देखने में तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसके जो भी सिस्टम्स हैं या जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही फाइनाइट हैं, लिमिटेड हैं. वी कैन चेंज द अर्थ एंड डैमेज इट्स सिस्टम्स. लेकिन जिस तरीके से हम अपने सराउंडिंग्स, अपने एनवायरनमेंट का यूज कर रहे हैं, उससे हम अपने पूरी अर्थ को डैमेज कर रहे हैं और इसके सिस्टम्स को डैमेज कर रहे हैं. एनवायरनमेंट की मैंने आपको बात बताई कि जो भी हमारे आसपास है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वाटर का, जो हम दिन में यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर अदर डे टू डे एक्टिविटीज. वी ब्रीथ एयर
We use resources from which food is made and we depend on the community of living plants and animals, जिससे कि ये पूरा वेब बनता है लाइफ का, जिसके हम भी एक पार्ट हैं. So in all, I think you are understood with the concept that what is actually environment. It is everything around us forms our environment, and our lives depend on keeping its vital system as intact as possible. So environment includes all the living and non-living things around us. That includes animals, plants, forests, farms, etc. Along with that, continents, oceans, clouds, ice caps, structures, urban centers, living spaces, social relationships also, and institutions also. यानी कि हमारे आसपास जो भी हमारे relationships होते हैं with different aspects, और या फिर हम कह सकते हैं जो भी ये इस पार्ट हैं हमारे इस पूरे लाइफ का, यानी कि एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फार्म्स, इन सब के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप्स हैं, और इसमें about the institutions also. So our dependence on nature is so great that we cannot continue to live without protecting the earth's environmental resources. तो ये सब पे आप जानते हैं कि कितना डिपेंडेंट है. तो अगर हम इन्हें नहीं प्रोटेक्ट करते, अगर तो हम शायद जी नहीं पाएंगे. We cannot continue to live without protecting the earth's environmental resources. Thus, most traditions refer to our environment as Mother Nature. You know that हम Mother Nature कहते हैं और धरती को भी माँ कहते हैं. And most traditional societies have learned that respecting nature is vital for all livelihoods. In fact, हमारे ancestors ने भी, traditional societies ने भी हमें यही सिखाया है कि nature को respect करना बहुत ज़रूरी है for our livelihoods. This has led to many cultural practices that helped traditional societies protect एंड प्रिजर्व देयर नेचुरल रिसोर्सेज. इसी वजह से, कल्चरल प्रैक्टिस की वजह से ही हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज थी उन्होंने प्रोटेक्ट किया, प्रिजर्व किया अपने नेचुरल रिसोर्सेज को. रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड ऑल लिविंग क्रीचर्स इज नॉट न्यू टू इंडिया. ऑल आवर ट्रेडिशंस आर बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज. Emperor Ashoka himself edicts proclaimed that all forms of life are important for our well-being in 4th century BC. तो आप समझ सकते हैं कि 4th century BC से ही हमारे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझी गई कि वाकई में हमारे लिए ये जो नेचर है वो बहुत ज़रूरी है. एंड रिस्पेक्टिंग नेचर इज वाइटल फॉर आवर लाइवलीहुड्स. Thus it is very important to protect and preserve our natural resources. So humans are also part of nature, जो मैंने आपको बताया कि चाहे हम पानी पीते हैं, air and all the surroundings, continents, oceans and everything, और ये सब environment का part है, of which we are also a part. So human depends on this healthy functioning planet. आपको मैंने बताया कि हमारा total dependence है इस nature पे, और वो भी इतना ज़्यादा है कि we cannot continue to live without protecting the earth's environmental resources. यानी कि अगर हम इसे नहीं बचाते हैं तो हम खुद भी यहाँ रह नहीं पाएंगे. We will not be able to survive if we will not protect the earth's valuable environmental resources. So over the past 200 years, however, modern societies began to believe that easy answers to the question of producing more resources could be provided by means of technological innovations. For example, through growing more food by using fertilizers and pesticides, developing better strains of domestic animals and crops, irrigating farmland through mega dams and developing industry led to rapid economic growth, and the ill effects of this type of development led to environmental degradation. तो हम इसका पार्ट हैं और हम depends on the healthy functioning planet. और अगर ये हेल्दी फंक्शन नहीं करता है क्योंकि हम इस पर डिपेंड हैं, सो वी ऑल्सो विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू आवर लिविंग एंड विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू आवर सर्वाइवल ऑन अर्थ. सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमंस को समझना चाहिए इसका इम्पोर्टेंस. और जो क्वेश्चन है इन सब इजी आंसर, मॉडर्न सोसाइटीज़ जो हैं वो सोच रही हैं, दे बिलीव दैट इजी आंसर्स टू द क्वेश्चन ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर रिसोर्सेज could be provided by means of technological innovations. हम लोग सोचते हैं मॉडर्न सोसाइटी के लोग कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो जाएंगी तो शायद हमें अर्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट नो, जिस तरीके से हम इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड
बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हैं एनिमल्स की, जिसकी वजह से रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, बट द इल इफेक्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे साइंस आ रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि हम वाकई में अपनी अर्थ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो द फंडामेंटल इंसाइट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस इज दैट वी आर अ पार्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड बट वी कैन ऑल्सो चेंज इट, यानी कि हम इसका पार्ट हैं लेकिन हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। और इंटरेक्शन विद इट्स अदर पार्ट्स मैटर अ ग्रेट डील, यानी कि हम किस तरीके से इनसे इंटरैक्ट करते हैं इन सब रिसोर्सेज से, वो बहुत बड़ी बात है। अगर ये सोच लेना कि अर्थ को एक्सप्लॉइट करने से कोई नुकसान नहीं होगा और कुछ डिग्रेडेशन नहीं होगा, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, जो हम बहुत गलत एज्यूम कर रहे हैं। वी डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल, क्योंकि हम ऐसा सोच लें अगर टेक्नोलॉजी अगर है तो हमें इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग एजम्पशन, बिकॉज हम पूरी तरीके से वी डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल। और साथ साथ में हमारी हेल्थ, लॉन्गर लाइफ, वेल्थ, मोबिलिटी, लेजर, इस सब को भी इंक्रीज करता है हमारा एनवायरनमेंट। बट नेचुरल सिस्टम्स हैव बीन डिग्रेडेड बाय पोल्यूशन, सॉइल इरोजन एंड स्पीशीज एक्सटिंक्शन। जो मैंने आपको बताया कि हम बहुत ज़्यादा अपने डोमेस्टिक एनिमल्स और क्रॉप्स को बेटर स्ट्रेन्स कर रहे हैं, ओवर क्राउडिंग हो रही है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, इस तरीके की हम पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, मेगा डैम्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, तो हम अपने नेचुरल सिस्टम्स को डिग्रेड कर रहे हैं बाय द पोल्यूशन, soil erosion and species extinction. The industrial development and intensive agriculture that provides the goods for our increasingly consumer oriented society uses up large amounts of natural resources such as water, mineral, petroleum product, wood, etc. वहीं हमारे पास कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगी, जो जैसे कि मिनरल्स एंड ऑयल, जिनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन एंड दे विल बी एग्जॉस्टेड इन द फ्यूचर इफ वी कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट दीज विदाउट अ थॉट ऑफ सब्सिक्वेंट जनरेशंस। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखते हैं और इसी तरीके से इनको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमारे आने वाली जनरेशंस के लिए वी विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड देम एनीथिंग। एनवायरमेंटल चेंजेस थ्रेटन लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑल्सो, और इस तरीके के जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे एनवायरमेंट में, इससे हमारे लॉन्ग टर्म हेल्थ और सर्वाइवल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एनवायरमेंटल चेंज की वजह से इट इज थ्रेटनिंग द लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज ऑल द स्पीशीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। What about this environmental science, or we are studying about environmental study? It's a study of how the natural world works. किस तरीके से नेचुरल वर्ल्ड जो है वो काम करता है। मैंने आपको बताया कि डील्स विद एवरी इशू दैट अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म। इट इज एसेंशियली अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच दैट ब्रिंग्स अबाउट अप्रिसिएशन ऑफ आवर नेचुरल वर्ल्ड, कि इसमें एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो हमारे लेकर आता है अप्रिसिएशन फॉर आवर नेचुरल वर्ल्ड एंड ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन इट्स इंटेग्रिटी। और ये एक अप्लाइड साइंस है एज इट सीक्स प्रैक्टिकल आंसर्स टू मेकिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन सस्टेनेबल ऑन द अर्थ फाइनाइट रिसोर्सेज। और मैंने आपको इसमें सब फैक्टर्स भी बताए, सब कंपोनेंट्स भी बताए, जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, statistics, computers, philosophy, all the components are included in it because more or less they are linked with the organism और कहीं ना कहीं affect करते हैं organism को, so they are the part of this environmental study. How the environment, मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ये स्टडी है जिसमें हम ये देखते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड किस तरीके से वर्क करता है, हाउ द एनवायरनमेंट अफेक्ट्स ह्यूमंस एंड वाइस वर्सा, यानी कि हम कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं और एनवायरनमेंट हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है। दोनों केसेस में जो हम समझते हैं कि एक्चुअली हमारे लिए क्या योगदान है एनवायरनमेंट का और हम क्या योगदान देते हैं, दोनों ही केसेस के बारे में हम इस एनवायरमेंटल स्टडी में पढ़ते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट टू क्रिएटिवली सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हमें इंटरेक्ट करना पड़ेगा एनवायरनमेंट के साथ, इसके वेरियस फीचर्स के साथ, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स और कंपोनेंट्स के साथ, ताकि हम इसे समझ सके और जो इस तरीके के एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे सॉल्व किया जा सके। ग्लोबल कंडीशंस आर रैपिडली चेंजिंग। धीरे धीरे मैंने जैसा आपको बताया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है आ गए हैं
that provides the goods for an increasingly consumer oriented society. The uses of large amounts of natural resources such as water, minerals, petroleum products, food. तो ग्लोबल कंडीशंस जो है दे आर रैपिडली चेंजिंग, बहुत से चेंज आते जा रहे हैं, कंज्यूमर ओरिएंटेड बनती जा रही है हमारी सोसाइटी भी, एंड दे आर रैपिडली चेंजिंग. वी आर ऑल्सो रैपिडली गेनिंग नॉलेज ऑल्सो, हमको नॉलेज भी आती जा रही है रैपिडली, एंड द अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इज स्टिल अवेलेबल. अभी भी हमारे पास इस प्रॉब्लम को जो हम डिग्रेड कर रहे हैं अपनी एनवायरनमेंट को, इसको सॉल्व करने की अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है. बट अगर अभी भी हमने इसे टाइम रहते हुए नहीं समझा ठीक से, तो वन डे विल कम कि जहां पर हमारी सब्सिक्वेंट जनरेशन के पास कुछ भी नहीं बचेगा, बिकॉज वी रिलाई ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. मैंने आपको बताया नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, सच एज मिनरल्स, oil, and are those which will be exhausted in the future if we continue to extract these without a thought of for subsequent generations. यानी कि natural resources पे हम पूरी तरीके से rely करते हैं. ये वो substances होते हैं, वो energy resources होते हैं जो हमें survival के लिए ज़रूरी हैं. इनमें हमने इन्हें दो parts में divide किया है, या दो categories में divide किया है. Renewable natural resources जो replenish हो जाते हैं, यानी कि finish हो जाते हैं, और फिनिश नहीं हो पाते हैं, और इनको परपेचुअली रिन्यू कर सकते हैं. रिन्यूएबल से आप एज द नेम सजेस्ट और एज द नेम टेल्स यू कि रिन्यू कर सकते हैं, हम इसे बार बार यूज कर सकते हैं. इट कैन बी रिप्लेनिश्ड, यानी कि दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, लाइक सनलाइट, विंड, वेव एनर्जी. तो रिन्यू देमसेल्व्स ओवर शॉर्ट पीरियड्स, यानी कि थोड़े ही समय में अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं, जैसे कि वाटर, soil. So these renewable resources जो होते हैं ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं. वहीं अगर हम नॉन रिन्यूएबल की बात करें, तो अगर हम इन्हें यूज कर लेते हैं, इनके डिप्लीशन के बाद दे आर टोटली अनअवेलेबल, जैसे कि ऑयल, कोल, मिनरल्स. सो दीज आर नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि विच विल बी एग्जॉस्टेड इन द फ्यूचर. अगर हम इन्हें ठीक से यूज नहीं करते हैं जुडिशियली, इफ वी कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट दीज विदाउट अ थॉट फॉर सब्सिक्वेंट जनरेशन, सो दे विल एग्जॉस्ट इन द फ्यूचर. वहीं मैंने आपको बताया रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो टिम्बर, वाटर आर दोज व्हिच कैन बी यूज्ड बट कैन बी रीजनरेटेड बाय natural processes such as regrowth or rainfall, but these two will be depleted if we continue to use them faster than nature can replace them. जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़े समय में अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं, बट रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी एक दिन खत्म हो सकते हैं. These two will be depleted if we continue to use them faster than nature can replace them. For example, if the removal of timber and firewood from the forest is faster than the regrowth and regeneration of trees. जिस तरीके से हम अगर टिम्बर को यूज कर रहे हैं, इनको इतनी तेजी से यूज कर रहे हैं, देन द रीग्रोथ एंड रीजनरेशन, जितनी तेजी से ट्रीज की रीजनरेशन नहीं होती, रीग्रोथ नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली दे विल डिस्ट्रॉय. इट कैन नॉट रीप्लेनिश द सप्लाई, उतना नहीं पहुंच पाएगा जितनी की डिमांड है, तो सप्लाई पूरा नहीं हो पाएगा. एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर not only depletes the forest of its resources such as timber and other non-wood products, but affect our water resources also, because intact natural resources act like a sponge which holds water and releases it slowly. Deforestation जो हम कर रहे हैं, it also leads to floods. पेड़ों को काट रहे हैं, इससे हमारे टिम्बर और इस तरीके के नॉन वुड प्रोडक्ट्स, इनसे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और वाटर रिसोर्सेज को भी हम अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एन इंटैक्ट नेचुरल रिसोर्स एक्ट लाइक अ स्पॉन्ज, क्योंकि इस तरीके का जो नेचुरल फॉरेस्ट होता है, इंटैक्ट नेचुरल फॉरेस्ट, वो एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है और वाटर को होल्ड करके रखता है और धीरे धीरे से स्लो करता है, और वाटर साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है. यानी कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो इससे हम टिम्बर और इस तरीके के नॉन वुड प्रोडक्ट्स को भी डिप्लीट कर रहे हैं, साथ साथ से वाटर रिसोर्सेज को भी अफेक्ट हो रहा है, और इट लीड्स टू फ्लड्स इन द मॉनसून्स एंड ड्राई रिवर्स वंस और या तो बहुत ज्यादा फ्लड्स हो जाएंगे मॉनसून्स में, या ड्राई रिवर्स हो जाएंगी वंस द रेन्स आर ओवर. तो इस तरीके के मल्टीपल इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं ऑन द एनवायरनमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम रूटीन ह्यूमन एक्टिविटीज. जो भी हम रूटीन में कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, हम देख सकते हैं कि इसके मल्टीपल इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में हमारे, एंड मस्ट बी अप्रिशिएटेड बाय ईच वन ऑफ अस if it is to provide us with the resources we need in the long term.
नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कंपेयर विद मनी इन द बैंक. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंपेयर कर सकते हैं मनी के साथ. इफ वी यूज इट रैपिडली द कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड टू जीरो. सो यू कैन अंडरस्टैंड ये उस पैसे की तरह है जो बैंक में पड़ा है, और अगर हम इसे इतनी तेजी से इस्तेमाल करेंगे तो कैपिटल जो है वो जीरो पर आ जाएगा. ऑन द अदर हैंड अगर हम इफ यू यूज ओनली द इंटरेस्ट, वहीं अगर हम सिर्फ इंटरेस्ट का यूज करते हैं, आप समझ सकते हैं कि इट कैन सस्टेन अस फॉर द लॉन्गर टाइम. तो हम ज्यादा लंबे समय तक उसे चला पाएंगे. दिस इज कॉल्ड द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस नीड कि अगर हम पूरा ही कैपिटल ले लेते हैं तो इट विल रिड्यूस टू जीरो वन डे. वहीं अगर हम सिर्फ इंटरेस्ट को यूज करते हैं तो ज्यादा लंबे समय तक हम इसे चला पाएंगे. सो वी रिलाई ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल मतलब कि जिन्हें हम दोबारा से यूज कर सकते हैं और कुछ टाइम के अंदर ये दोबारा से अपने आप को रिप्लेनिश कर लेते हैं. बट कुछ टाइम में अगर हमने इसे कुछ टाइम भी नहीं दिया और बहुत ही तेजी से इसे इस्तेमाल कर लिया तो वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगे. और दे विल ऑल्सो बी डिप्लीटेड इफ वी कंटिन्यू टू यूज देम फास्टर देन नेचर कैन रिप्लेस देम. इसमें सनलाइट मैंने आपको बताया, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, फ्रेश वाटर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड सॉइल्स. वहीं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद डिप्लीट हो जाते हैं. दे विल बी एग्जॉस्टेड इन द फ्यूचर इफ वी कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट दोज विदाउट थॉट फॉर सब्सिक्वेंट जनरेशंस. इनमें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स, ये सब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में. नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट स्कोप एंड हाउ वी रिलाई ऑन नेचुरल रिसोर्सेज and actually what is environmental study. We have all studied about that. Now we will study about the importance and other aspects of our environment और किस तरीके से हम इसे डिग्रेड कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं हम अपने एनवायरनमेंट में, किस तरीके से हमें पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है. वी विल स्टडी अबाउट ऑल दीज थिंग्स बट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन बाय नाउ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग.